ذرا सुने, یہ جملہ عام نہیں ہے. جس دن موت آئے گی اس دن آپ کو پہلی بار حقیقت پوری طرح سمجھ آئے گی، مگر مسئلہ یہ ہے اس دن واپسی نہیں ہوگی. سوچئے، اگر آج رات آنکھ بند ہوئی اور صبح نہ کھلی تو آپ کا موبائل، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کی محنت، آپ کی پہچان سب یہیں رہ جائے گا، اور آپ صرف ایک سوال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تیاری کس حال میں کی تھی؟ ہم سب کہتے ہیں موت برحق ہے، مگر ہم ایسے جیتے ہیں جیسے موت ہمیں دیکھ ہی نہیں رہی. اصل سوال یہ نہیں کہ موت برحق ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہم برحق حالت میں موت کے لیے تیار ہیں؟ راز درد ڈرانے کا نام نہیں، یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان خاموشی سے خود کو دیکھتا ہے. یہاں ہم موت اور زندگی کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ دل بیٹھ جائے، بلکہ اس لیے کہ دل جاگ جائے. اگر اس وقت یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو رہے ہیں تو ممکن ہے یہ بات کسی اور کے دل کی بھی ہو. اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، شاید کسی کا دل اللہ کی طرف لوٹ آئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو راز درد کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ کوئی بات آپ سے رہ نہ جائے. ایک لائک ہمیں یہ بتا دے گا کہ آپ نے یہ بات دل سے سنی، کیونکہ یہ سفر اکیلے نہیں مل کر طے کیا جاتا ہے. ہم موت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے. یہ علم ہمیں وراثت میں ملا ہے، یہ جملہ ہم نے بچپن سے سنا ہے. مگر سوال یہ ہے کیا ہم واقعی اس پر یقین کے ساتھ جیتے ہیں؟ ہم جنازے پڑھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، مٹی ڈال کر فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پھر واپس آ کر زندگی ویسی ہی شروع ہو جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں موت ایک واقعہ ہے جو مستقبل میں کہیں ہو جائے گا، حالانکہ موت کوئی واقعہ نہیں، موت تو ہر سانس کے ساتھ ہمارے قریب آتی حقیقت ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ آیت کسی خاص انسان کے لیے نہیں، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے. مگر پھر بھی ہم ایسے منصوبے بناتے ہیں جیسے ہمیں ہمیشہ رہنا ہو. کل سے بدلیں گے، کچھ وقت بعد توبہ کریں گے، رمضان میں سنبھل جائیں گے، بوڑھے ہو کر اللہ کی طرف آ جائیں گے. لیکن ہم ایک سوال خود سے نہیں پوچھتے، کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت ہمیں ملے گا؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں موت یاد نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا بہت زیادہ یاد رہنے لگی ہے. ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہر دن ہماری زندگی کا ایک صفحہ بند ہو رہا ہے. حضرت حسن بن سیری فرمایا کرتے تھے، اے انسان، تو دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تیرا ایک حصہ چلا جاتا ہے. مگر ہم ہر گزرتے دن پر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دن ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے. ہمیں ڈر موت سے نہیں لگتا، ہمیں ڈر اس خیال سے لگتا ہے کہ اگر موت کو یاد رکھا تو شاید ہماری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی. اسی لیے انسان غفلت کو سکون سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ غفلت سکون نہیں، غفلت وہ نیند ہے جس کے بعد اچانک بیداری بہت تکلیف دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اچانک کسی اپنے کی موت ہوتی ہے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود کو کبھی اس سچ کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہوتا. موت ہمیں ڈرانے نہیں آتی، موت ہمیں یاد دلانے آتی ہے. یاد دلانے کہ اصل زندگی یہ نہیں جو ہم جینے میں لگے ہوئے ہیں، اصل زندگی وہ ہے جس کی تیاری ہم ٹالتے چلے جا رہے ہیں. تیاری کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب ہم تیاری کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں کچھ ظاہری چیزیں آتی ہیں،
ज्यादा इबादत, ज्यादा नफिल, ज्यादा जिक्र, ये सब अहम है, मगर ये मुकम्मल तैयारी नहीं। असल तैयारी सिर्फ सजदों की तादाद का नाम नहीं, असल तैयारी दिल की हालत का नाम है। सोचिए, अगर इस लम्हे आप अल्लाह के सामने खड़े हों तो क्या आपका दिल इत्मीनान में होगा या दिल में एक बोझ होगा कि बहुत कुछ रह तो नहीं गया? कुरान हमें बहुत साफ लफ्जों में याद दिलाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीमिन। अश्शुअरा, उस दिन न माल काम आएगा न औलाद, सिवाय उसके जो अल्लाह के पास साफ दिल लेकर आएगा। ये आयत हमें बताती है कि आखिरत में डिग्रियां नहीं देखी जाएंगी, हिसाब नहीं देखा जाएगा, ओहदे नहीं देखे जाएंगे, देखा जाएगा सिर्फ एक चीज, दिल। तैयारी का मतलब है ये देखना कि मेरा दिल किसी के लिए नफरत से तो नहीं भरा, किसी का हक तो नहीं मारा, किसी को तकलीफ देकर सो तो नहीं गया। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह हमें गुनाहों पर पकड़ेगा, मगर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें लोगों के हुकूक पर भी पकड़ेगा। इसीलिए कुरान कहता है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, यकीनन उनसे सवाल किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ नमाज के बारे में नहीं होगा, ये सवाल सिर्फ रोजे के बारे में नहीं होगा, ये सवाल होगा, तुमने दिल तोड़ा तो क्यों? तुमने माफ क्यों न किया? तुमने ताकत होते हुए कमजोर को क्यों दबाया? तैयारी का मतलब है कि इंसान अपने दिल को हल्का करे मौत से पहले, क्योंकि भरा हुआ दिल जब अल्लाह के सामने जाता है तो बोझ बन जाता है, और खाली दिल अल्लाह के सामने सबसे कीमती चीज बन जाता है। इसीलिए तैयारी शोर से नहीं होती, तैयारी खामोशी से होती है। वो खामोशी जिसमें इंसान खुद से सच बोलता है, वो खामोशी जिसमें इंसान अल्लाह से कहता है, या अल्लाह, मैं कामिल नहीं मगर मैं लौटना चाहता हूँ। सबसे खतरनाक खसारा, हम दुनिया में खसारे को बहुत महदूद माने में समझते हैं। कारोबार बंद हो जाए तो कहते हैं नुकसान हो गया, नौकरी चली जाए तो कहते हैं बड़ा खसारा हो गया। मगर कुरान खसारे की एक ऐसी तारीफ देता है जो इंसान की रूह हिला देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ज़माने की कसम, यकीनन इंसान खसारे में है। ये आयत किसी खास इंसान के लिए नहीं, ये आयत हम सब के लिए है। और ये खसारा मौत के बाद शुरू नहीं होता, ये खसारा उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन इंसान मौत को भूलकर जीना शुरू कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कब्र की हकीकत। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जन्नत और जहन्नम को याद करके इतना नहीं रोते जितना कब्र को देखकर रोते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहाँ निजात हो गई तो आगे सब आसान है, और अगर यहाँ सख्ती हुई तो आगे और सख्ती है। तिर्मिज़ी। सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत यकीनी थी, वो कब्र को याद करके रोएं, और हम कब्र को याद किए बगैर खुद को मुतमईन समझ लें। हज़रत उमर फारूक का खौफ। हज़रत उमर बिन खत्ताब, जिनके अदल की मिसालें दी जाती हैं, जिन्हें जन्नत की बशारत मिली, लेकिन उनका हाल ये था कि अक्सर फरमाया करते,
काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। अगर मुझे ये मालूम हो कि मैं अल्लाह के सामने सुर्ख रूह होऊंगा या नहीं। एक मौके पर उन्होंने सूरह तूर की ये आयत सुनी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। ये सुनकर हजरत उमर पर ऐसा असर हुआ कि कई दिन तक बीमार रहे। सोचिए, ये खौफ किसी गुनाहगार का नहीं था, ये खौफ उस शख्स का था जो हर लम्हा अल्लाह के सामने जवाबदही को याद रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए फिक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए अमल करे। तिर्मिज़ी। ये हदीस हमें बताती है कि असल अक्लमंदी डिग्रियों में नहीं, तजुर्बे में नहीं, दौलत में नहीं। असल अक्लमंदी ये है कि इंसान अपनी आखिरी मंजिल ना भूले। सबसे खतरनाक खसारा ये नहीं कि इंसान के पास कुछ ना हो, सबसे खतरनाक खसारा ये है कि इंसान के पास सब कुछ हो मगर अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कुछ भी ना हो। मौत से पहले की सच्ची तैयारी। मेरे बहनों और भाइयों, अगर मौत का जिक्र आपके दिल में खौफ पैदा कर रहा है तो याद रखें, ये खौफ इसलिए नहीं कि अल्लाह हमें दूर धकेलना चाहता है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। मौत इख्तिताम नहीं है, मौत फैसला है। ये वो लम्हा है जहां ये तय होता है कि इंसान किसके साथ जा रहा है, अल्लाह के साथ या अपनी गफलत के साथ। सच्ची तैयारी ये नहीं कि इंसान सब कुछ छोड़ दे, सच्ची तैयारी ये है कि इंसान दिल को दुरुस्त कर ले। अगर नमाज में कमी है तो नीयत बना लें कि अब लौटना है। अगर किसी का हक मारा है तो माफी मांग लें मौत से पहले। अगर दिल में नफरत है तो आज ही उस बोझ को उतार दें, क्योंकि अल्लाह ने हमें कभी ये नहीं कहा कि कामिल बनकर आओ। अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है कि लौट कर आ जाओ। कुरान हमें उम्मीद देता है, कुल या इबादिया अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये आयत उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, जब तक सांस है तब तक दरवाजा खुला है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई है तो इसे किसी और तक भी पहुंचा दीजिए। कमेंट में जरूर लिखें कि ये पैगाम आपके दिल पर क्या असर छोड़ गया। ऐसी बातें जो दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दें। अगर आप उनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो राज़े दर्द को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। अल्लाह हमें मौत से पहले अपनी तरफ लौटा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।